देयर इज अ बिगर क्वेश्चन द नेशन वांट्स, जिसको हम कहते हैं ना कि देश मांगता है कुर्बानियां, लेकिन कितनी? हर बार सिपाहियों की कुर्बानियां क्या? अपने बेटे अपने घर का कोई नहीं जाएगा? ओके, सो what did that major do wrong? What did an army officer do wrong when he tied a bloody stone pelter in front of his jeep or on the bonnet of jeep and he took a round? But the reason was clear, because he was protecting the election commission guys and the civilians there. उसके ऊपर इंक्वायरी, उसके ऊपर की बात कर रहे हैं दोस्त. जस्ट अ सिंपल मैसेज, ऐसे जितने भी मेरे भाई बैठे हैं ना वहां पर, आई डोंट बॉदर अबाउट अदर्स, बट दिस गाय विल सपोर्ट यू टिल द लास्ट ब्रीथ. मैं वहां खड़ा हूं एंड आई विल ऑलवेज स्पीक ऑन योर बिहाफ. पीपल टॉक अबाउट द ह्यूमन राइट्स, राइट? Forget about your human rights. Talk about the fundamental rights of the soldiers. What about the fundamental rights of the soldiers? Has anybody spoken about that? नहीं, human rights वाले खड़े हो जाते हैं. अगर वहां पर, yes, I agree, pellet guns should stop. The real gun should be used now. Why? 33,927 people are there in ICCU from the armed forces and paramilitary forces. उनका कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है ना? ओके, व्हाट अबाउट द ट्रेटर्स? यू हैव टू डिफाइन द ट्रेटर्स इन दिस कंट्री एंड दैट हैज टू बी मेंशन्ड इन वन ऑफ द अदर डिक्शनरी ऑफ दिस कंट्री. हु विल बी कॉल्ड द ट्रेटर्स? Don't you think the guys, those who are saying that the talks will solve the problem with Pakistan, or they should be called traitors? Or the anti-national media who says that all the terrorists were all innocent people, aren't they the traitors? You will have to ask this question to yourself. This is so very important to answer, and I will be keep asking this, because it is, as an Indian, as a common Bharatiya, it's my responsibility to raise this question to my youngsters and my youth. You will have to think, are we actually respecting the traitors and bastards in this country? We will have to answer this. What is the basic answer of the solution? It's very simple. Let the bloody cannons open. Let the RT open the fire. The LOC is 741 kilometers. Let the bloody RT open. And the Indian Armed Forces can raise every bloody post to the ground. They can raise the post to the ground within 1 hour. But again, the will, where is the will? It's been enough, Gold Bachchan, it's been enough. Shit has been spoken. But what about the action? And now the action time has to begin. Now, okay, after surgical strike, there was a big silence from the Pakistanis under the problem. When I say Pakistan, it is the Pakistani army. BAT, the Border Action Team, is one of the finest trained guys from their armed forces, trained by the SSG, right? And the moment they are caught, they do not even claim their own soldiers. Pakistani army, ये जो कर रही है, they can easily be answered. But where is the permission? Just need a simple permission. Nothing else is required. What the youngsters can do, boycott all these anti-national media, boycott all these traitor guys, these politicians, those who talk about the bloody talks. Talks are not going to solve anything. It's been the years we have been talking about. What about, where is the confusion? Pakistan occupied Kashmir, what they say, it is actually our Kashmir which will remain ours. So there is no battle of Kashmir. There is a bloody battle of the betrayal, and we will have to understand, especially the youngsters will have to understand, कब तक दोस्त, कब तक सिर्फ खड़ी निंदा चलती रहेगी इस देश में? अब कहीं ना कहीं बड़ा जवाब देना पड़ेगा, and the youth will have to take a stand to retaliate. If you can't retaliate anywhere, please retaliate on social media, because that's your power. कितने कैप्टन सौरभ कालिया, कितने हेमराज जैसे लोग, कितने प्रेम सागर जैसे लोग, और कितने परमजीत सिंह साहब जैसे लोग, कितना लहू चाहते हो यार? The bigger question is, who is actually the killer and the murderer of these guys? उनके लिए गर्व की बात है कि अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए अपना लहू चढ़ाना, लेकिन क्या एक बार मर रहा है वो सिपाही, वो बॉर्डर पे, वो अगर पाकिस्तान जंग में मरता है, पाकिस्तानी फौज मारती है, बात अलग है, उनके सर काट के ले जाए जा रहे हैं. What about the brutality? Is this a soldier thing? Is it a respect of a soldier? अगर पाकिस्तानी फौज सच्चा सिपाही होती तो क्या ये करती? चलिए उनकी छोड़िए यार, वो तो दुश्मन है, उनसे तो दगा, ठीक है, समझ जाते हैं, ठीक है, वॉर के रूल है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. दगाबाजी तो यहां हो जाती है. हर रोज इनकी रूह को मारा जाता है, इनकी आत्मा को काटा जाता है. एक बार उनकी लाश आती है, लेकिन हर बार उनके घर वालों को यार तड़पाते, उनकी आत्मा, इनकी रूह का कत्ल कौन करता है? वो इस देश में बैठे हुए कुछ गद्दार एंटी नेशनल मीडिया वाले, जिनको ये टेररिस्ट और पत्थर फेंकने वाले मासूम लगते हैं, और वो सिपाही जो मरता है वो इनको बड़ा तानाशाह लगता है. अरे धिक्कार है तुम्हारी सोच पर, और धिक्कार है तुम्हारे उस पासपोर्ट पे लिखा हुआ रिपब्लिक ऑफ इंडिया पर. तुम्हें इतना शौक है ना, तो भारत के एक अपनी
मैंने वचन नहीं दिया होता ना अपने बड़े भाइयों को तो तुम्हारी जो करता मैं आज ना, बट बात वही है यार, कितनी बार गुस्सा करेंगे। द नेशन हैज टू अंडरस्टैंड, द कंट्री हैज टू अंडरस्टैंड। जिन लोगों ने इस देश के बारे में अच्छा बोला, उन जैसे इतने बड़े अच्छे मीडिया वालों के साथ भी कुछ गलत हो रहा है। द थिंग इज दैट आई स्टैंड बाय द पीपल, आई स्टैंड बाय दोज एवरी पॉलिटिशियन एंड मीडिया हु स्टैंड फॉर दिस कंट्री एंड हु टॉक्स अबाउट द सोल्जर। बस बात यही है दोस्त कि इनकी कम से कम शहादत की कीमत करो और इनकी आत्माओं को और इनके परिवार को तो इतना नीचा मत दिखाओ कि उनके परिवार वालों ने क्या गलत कर दिया इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए अपनी जान देकर। रिस्पेक्ट देम, इनको इज्जत से ज्यादा आप कुछ नहीं दे सकते और आपकी औकात भी नहीं है। एंड प्लीज रिमेंबर वन मोर सिंबॉलिक थिंग, इन लोगों को जवाब देना जरूरी है जो इन गद्दारों के साथ खड़े हुए, चाहे वो मीडिया वाले हो चाहे नेता हो, जो इस देश के खिलाफ बोलता है, जो इस देश की सिपाही की शहादत के खिलाफ बोलता है। प्लीज डू नॉट क्रिएट सच थिंग्स इन द कंट्री। इस देश में तोड़ने का माहौल मत करो यार, बड़ी मुश्किल है वैसे भी। ये हर उस मुस्लिम भाई के लिए, हर उस हिंदू सिख ईसाई भाई के लिए मेरी तरफ से न मेरी नींद को तकलीफ न मंदिर की घंटी से है न मस्जिद की अजान से है, मेरी नींद को तकलीफ वहां बॉर्डर पे कटते हुए सिपाही और खेत में मरते हुए किसान से है। न भाषण चाहिए न राशन चाहिए, सिर्फ तेरी बोली इन मंत्रियों की वाणी में अनुशासन चाहिए। एंटी नेशनल मीडिया बैठा हुआ, उनकी भाषण उनकी बोली पर अनुशासन चाहिए और सिर्फ एक परमिशन चाहिए। हिंदुस्तानी फौज में इतना दम है, एक दिन के अंदर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में इन टेररिस्ट की खोपड़ियों का पहाड़ बना देगी। इनको रिस्पेक्ट दीजिए, बिकॉज इससे ज्यादा देने की कोई औकात नहीं है। अरे तुम इनको क्या दोगे? उनने अपना बेटा, अपना बाप, अपना पति इस देश की मिट्टी और इसकी आन बान शान के लिए, तिरंगे की शान के लिए निछावर कर दिया। तुम्हारी औकात क्या है? कब तक कड़ी निंदा चलेगी? अब कब निकलेगा डंडा? ये बड़ा सवाल। और क्या गद्दारी है यार, इन गद्दारों की जहां मिले वहां थप्पड़ मारो। अब जरूरी हो गया है हाथ पैर मुंह और हथियार सब खोलकर चलाना पड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।